Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों हम पढ़ रहे थे chapter number 1 Our country in the world. We were studying about the geographical location of our country. So let's continue with our chapter. Much of the north and west of Pakistan consists of very high mountains. यानी कि हमारी कंट्री का जो नदरन एरिया है and west of Pakistan consists of very high mountains. North और west consists of very high mountains. वहाँ पे बहुत से mountains हैं. There are lower but very dry mountain ranges in the west and southwest in Balochistan. इसके अलावा there are very dry mountain ranges in the west and southwest in Balochistan. पहले हमने पढ़ा north and west of Pakistan consists of very high mountains. Then in the west and southwest there are lower यानी कि उनकी height थोड़ी होगी but very dry mountains, लेकिन they are extremely dry. The western area of Pakistan is fairly high land which gets very little rainfall. इसके अलावा पाकिस्तान का जो western area है, in the west of Pakistan is fairly high land, that is high land which gets very little rainfall और वहाँ पे बहुत थोड़ी बारिशें होती हैं. In the south are the deserts of Sindh and Balochistan. और पाकिस्तान के साउथ में क्या है? There are deserts, सहरा हैं of Sindh and Balochistan. In the north of both Pakistan and India, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के नॉर्थ में are the greatest mountain ranges of the world. There are the greatest mountain ranges. बहुत बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं of the world, दुनिया के. These are the Himalayas in the east which merge into the Karakoram and Hindu Kush ranges in the west. So what are these mountain ranges? These are the Himalayas in the east which merge, जो कि जाके मिलती हैं into the Karakoram and Hindu Kush ranges. Into the Karakoram and Hindu Kush ranges, यानी कराकोरम और हिंदू कश के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें जाके the Himalayas merge होते हैं. The most important agricultural areas of Pakistan are the Indus Valley. अब अगर हम ज़राअत के लिहाज से बात करें तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल एरिया कौन सा है? इंडस वैली का एरिया. More than 3/4 of the population of the country lives in the provinces of Punjab and Sindh. यानी कि हमारी जो टोटल आबादी है उसका 3/4 से भी ज़्यादा का हिस्सा रहता है प्रोविंस ऑफ पंजाब में एंड सिंध में. और इसकी वजह है इंडस रिवर, क्योंकि जहाँ जहाँ से दरिया गुजरेंगे वहाँ वहाँ रोज़गार बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप फसलें उगा सकते हो, वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पानी मौजूद है. इसी वजह से पंजाब और सिंध की जो पॉपुलेशन है वो एज कंपेयर टू द रिमेनिंग 2 अदर प्रोविंसेस ज़्यादा है. Almost 80% of this region is irrigated by a well-developed canal system that uses water from river Indus and its tributaries. अब इस रीजन का जो इंडस वैली का रीजन है, 80% of this region is irrigated by a well-developed canal system. इसको पानी पहुंचाया जाता है, इरिगेट किया जाता है. आबपाशी का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है. by a well-developed canal system. एक बहुत अच्छा well-developed यानी कि अच्छे तरीके से बना हुआ एक कैनाल सिस्टम है. कैनाल की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. कैनाल मैन मेड रास्ते होते हैं पानी के गुजरने के लिए. ये रास्ते इंसान बनाते हैं और उस जगह तक पानी पहुंचाया जाता है जहां पर ज़रूरत होता है. और ये नॉर्मली शुरू होगा किसी दरिया से या बैराजेस से आ रहा होगा और पानी पहुंचाया जाता है खेतों तक या जहां भी पानी की ज़रूरत होती है. That uses water from river Indus. और ये कैनाल सिस्टम कहाँ से पानी लेता है? From river Indus and its tributaries. Tributaries हम कहती हैं छोटी छोटी streams को. This area has always been fertile.
यानी कि जरखेज। ये जो एरिया है जहाँ पे रिवर इंडस से पानी पहुँचाया जा रहा है, इट इज़ फर्टाइल, जरखेज है, यहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं, प्रोड्यूसिंग बल्क ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है, बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, जानवर रखे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी जगह से दरिया गुजरता है या कोई भी पानी का गुजराव होता है तो उसके इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पे रोजगार के मौके ज़्यादा हो जाते हैं। आप वहाँ पे फसलें उगा सकते हो, आप जानवर रख सकते हो, तो ग्रेजुअली ये सिस्टम डेवलप होता जाता है। वहाँ पे लोग घर बनाने लग जाते हैं और रहने लग जाते हैं, और यही वजह है कि पंजाब और सिंध की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। बच्चों, अब आपकी बुक में कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स गिवन है, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली जियोग्राफिकल टर्म है माउंटेन्स। दीज आर द हाईएस्ट लैंड्स, यानी कि ये ज़मीन का ऐसा हिस्सा होते हैं जो हाइट में सबसे ज़्यादा होते हैं। No fixed height at which a hill becomes a mountain, but mountains are usually above 2000 to 3000 meters. यानी कि कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई फिक्स्ड हाइट नहीं होती जिस पे एक हिल माउंटेन बनता है। But mountains are usually above 2000 to 3000 meters. लेकिन अगर आपने माउंटेन्स के बारे में जानना ही है या उनकी हाइट के बारे में, तो नॉर्मली उनकी हाइट 2000 टू 3000 मीटर से ज़्यादा होती है। यानी कि अगर इससे कम हाइट है, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड अ हिल। सम माउंटेन्स आर शार्प और पॉइंटेड, दिस शोज दैट दे आर यंग माउंटेन्स। अब कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, यानी कि उनका जो ऊपर वाला पॉइंट होता है दैट इज वेल फॉर्म्ड, वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं। आप कह सकते हो कि कुछ इस तरह की शेप होती है। और ये चीज हमें क्या दिखाती है, दैट दे आर यंग माउंटेन्स। ये हमें बताता है कि वो यंग माउंटेन्स हैं। Older mountains have had their sharp points worn away. अगर वो young हैं तो young और older mountains में क्या फ़र्क है कि जो older points होते हैं उनके जो सबसे पीक होती है वो इतनी शार्प नहीं होती, वो थोड़ी सी कर्व्ड होगी, सर्कुलर होगी, कुछ इस तरह की होगी। और उसकी वजह क्या होती है कि वो बहुत पुराने हो चुके होते हैं। उनके जो शार्प पॉइंट्स होते हैं वो तेज़ हवाओं की वजह से, बारिशों की वजह से, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स की वजह से वॉर्न अवे हो जाते हैं, यानी कि बोसीदा हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है यंग माउंटेन्स में और ओल्डर माउंटेन्स में। अब हम बात कर लेते हैं हिल्स की। लैंड्स अबव सी लेवल, दीज आर ऑल्सो लैंड्स, जमीन का हिस्सा अबव सी लेवल, सतह समंदर से ऊंचे। नॉट एज हाई एज माउंटेन, ये उतने ऊंचे नहीं होते जितने पहाड़। हमने पहले भी बात की कि अगर किसी चीज की हाइट, या आप कह सकते हो किसी पहाड़ की हाइट 2000 टू 3000 मीटर से कम है तो आप उसको हिल कहोगे। जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन, और ये नॉर्मली वेजिटेशन से कवर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लांट्स मौजूद होते हैं, ग्रीनरी होती है। इसके अलावा इन पर टेरेस फार्मिंग भी की जा सकती है। टेरेस फार्मिंग की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें ये होता है कि एट डिफरेंट लेवल्स फार्मिंग की जाती है ऑन हिल्स। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट जियोग्राफिकल टर्म दैट इज प्लेट्यूज की। एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल, दे आर ऑल्सो वेल अबव सी लेवल, समुद्री सतह से ऊंचे होते हैं। एंड एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड, लेकिन ये ऐसे एरियाज होते हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं। आप प्लेट्यूज की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको नजर आएगा कि ये सी लेवल से तो ऊंचे होते हैं बट दे आर जनरली फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको प्लेट्यूज कहते हैं। Some plateaus are fertile while others are poor land. अब कुछ plateaus fertile होते हैं, जरखेज होते हैं, वहाँ पे ज़राअत का काम किया जा सकता है, while others are poor land, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल fertile नहीं होते और वहाँ पे फार्मिंग या ज़राअत का कोई ख़ास काम नहीं किया जा सकता।
तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।